Good morning, everyone. Welcome to today's class. In today's class, we'll be talking about competent host for transformation. So this class is in continuation with my previous classes of restriction enzymes and then cloning vectors, agonistal electrophoresis. Okay, so this is a part of recombinant DNA technology, the tools. So this is the last part of the tools. And after this, I'll be talking about the process of recombinant DNA technology. So let's start on with today's class. So in today's class, first we'll talk about the competent cell. So here we'll talk about how the transformation is occurring and how is a cell made competent so that it can take up the DNA available. Okay, so normally what are the type of cells that can that can take part, that can act as a host, means कौन कौन सेल ऐसे हैं जो फॉरेन डीएनए को ले सकते हैं अपने अंदर so that transformation can occur. So basically examples are yeast, bacteria and mammalian cells. So these type of cells, they can take up DNA. Okay, they can be made competent so that they can take up DNA. Now what is competence? So the ability, okay, the ability of a cell, एक सेल की जो एबिलिटी होती है टू टेक अप डीएनए इजीली इनटू इट्स ओन जीनोम इज नोन एज कॉम्पिटेंस. और जो इसको कर सकते हैं, ओके, द सेल्स लाइक यू नो द ईस्ट बैक्टीरिया देन मैमिलियन सेल्स, जो होस्ट होते हैं, द होस्ट विच हैज़ दिस एबिलिटी टू टेक अप द डीएनए, दे आर नोन एज कॉम्पिटेंट होस्ट. ठीक है, तो बेसिकली व्हाट आर द मेथड्स ऑफ बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन? यहाँ पे 3 मेथड्स होंगे. सो व्हाट आर द मेथड्स of bacterial transformation? There are basically 3 methods. So what are they? Heat, आपका एक है physical method, एक है chemical method और एक है आपका transformation using plasmids. तो 3 टाइप के methods है. ठीक है, so chemical method में क्या क्या आपके आएंगे? chemical method में फर्स्ट में आपका chemical आपका उसमें आएगा heat shock treatment एक आएगा और एक है आपका electroporation. Okay, so electroporation and heat shock both are type of chemical methods. Okay, so physical method में आपका आएगा माइक्रो इंजेक्शन मेथड एंड लास्ट आपका ट्रांसफॉर्मेशन इन प्लास्मिड. तो ये हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे. सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द बेसिक, दैट इज द कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट. तो बिफोर यू परफॉर्म एनी केमिकल ट्रीटमेंट, ओके, बिफोर यू परफॉर्म एनी हीट शॉक ट्रीटमेंट और एनी दैट एज आई सेड अर्लियर इलेक्ट्रोपोरेशन ट्रीटमेंट, कोई भी आप केमिकल ट्रीटमेंट करने से पहले आपको कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. Why is this required? Because we know that DNA is negatively charged. Okay, DNA negatively charged है और वो एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है. ओके, हाइड्रोफिलिक मतलब it loves water. Okay, hydrophilic, it loves water. So since DNA is negatively charged and it's also an hydrophilic molecule, it cannot pass to the cell membrane. तो जब एक बैक्टीरिया कोई भी होस्ट उसको लेने की कोशिश करेगी, it will not go inside the bacteria. It will not be able to pass the membrane of the bacteria. Why? Because first DNA is a hydrophilic molecule and it's also negatively charged. तो therefore हम क्या करेंगे उसमें, first we'll try to make the bacteria or the yeast जो भी host है, we'll make it competent by adding calcium chloride. Okay, हम calcium chloride क्यों ऐड करें? Because जो calcium है वो divalent ion है. ठीक है, तो calcium क्या है, वो divalent cation है, it's a positively charged ion. So calcium क्योंकि positively charged है, it will, ये क्या करेगा, इट विल लीड टू दी डीएनए जो है वो श्रिंक करने, इट विल हेल्प इट टू श्रिंकेज ऑफ डीएनए. ठीक है, आइदर डीएनए को कंडेंस कर देगा या फिर इसको श्रिंक कर देगा. तो जैसे ही डीएनए श्रिंक हो जाएगा, इट विल बी एबल टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. ओके, तो ये है फंक्शन ऑफ कैल्शियम आयंस. तो पहले क्या करेंगे, कैल्शियम आयन का ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद जो ट्रीटमेंट होगा वो होगा. इससे क्या होगा, एफिशिएंसी, जो बैक्टीरिया जो होस्ट है वो एफिशिएंट हो जाएगा टू टेक अप द डीएनए. ओके, डीएनए विल बी इजीली, it will be able to enter the bacterial cell through the pores. ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे about the chemical method. ओके, सो यहाँ पे क्या क्या फर्स्ट है, हीट शॉक ट्रीटमेंट है और इलेक्ट्रोपोरेशन है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला यहाँ पे क्या है, हीट शॉक ट्रीटमेंट. ओके, सो ओके, लेट्स टॉक अबाउट हीट शॉक ट्रीटमेंट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपका यहाँ पे ये है केमिकल पोटेंट सेल. ओके, यहाँ पे इंक्यूबेशन लिखा है. व्हाट इज इंक्यूबेशन? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो हम लोग का जो बैक्टीरिया सेल है ना, बैक्टीरिया सेल और जो हमारे जो डीएनए है उसे इंक्यूबेशन किया जाएगा इन आइस. ओके, आइस में रखने के बाद इट विल बी मिक्स विद द कैल्शियम क्लोराइड. ओके, फिर कैल्शियम क्लोराइड ऐड हो जाएगा एंड आफ्टर दैट अगेन उसको क्या किया जाएगा. अच्छा, आपको मैं बेटर के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए सेंट्रीफ्यूज करके देखिए. पहले क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरियल पैलेट जो है,
पेलेट मतलब क्या होता है, जब हमारे पास सस्पेंशन होगा तो उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा और हमें जो पेलेट मिलेगा उस पेलेट को सस्पेंड किया जाएगा इन कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद उसको आइस में रखा जाएगा, चिल मतलब चिल्ड आइस में। उससे क्या होगा, दिस इट बैक्टीरिया विल बी इजीली इट विल टेक अप द कैल्शियम आयंस, ठीक है। ट्रीटमेंट उसका हो गया है, ओके। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, हीट शॉक ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे क्या है, इस पार्ट में देख सकते हैं आप, यहाँ पे इंक्यूबेट किया जाएगा, ओके, विद द बैक्टीरियल सेल एंड विद द फॉरेन डीएनए इंक्यूबेट किया जाएगा। उसके बाद उसको हीट शॉक दिया जाएगा। टेम्परेचर क्या है, 42 डिग्री सेल्सियस, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 42 डिग्री सेल्सियस में उसको हीट शॉक दिया जाएगा। आफ्टर द हीट शॉक फिर से उसको क्या किया जाएगा, उसको आइस में रखा जाएगा। तो आइस ट्रीटमेंट, फिर हीट शॉक ट्रीटमेंट, फिर आइस ट्रीटमेंट। उसके बाद दिस इज नोन एज एक्चुअली हीट शॉक ट्रीटमेंट, ठीक है। देन वी कैन रिकवर आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, ओके। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। यहाँ भी सेम है, यहाँ भी पहले आइस में रखा जाएगा, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा। एंड आफ्टर इलेक्ट्रिक शॉक इज गिवन देन अगेन इट विल बी केप्ट इन द आइस, ओके, चिल्ड आइस में रखा जाएगा एंड देन अगेन रिकवरी किया जाएगा। सो दिस इज इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड, वेरी इजी है, कोई टफ नहीं, आप खुद बना के लिख सकते हैं इसको, ओके। तो यहाँ पे यही बताया कि हीट शॉक ट्रीटमेंट क्या है। पहले क्या करेंगे, उसको इंक्यूबेट किया जाएगा, ठीक है, आइस में। उसके बाद हीट शॉक ट्रीटमेंट दिया जाएगा एंड देन अगेन बैक टू आइस, ओके। नाउ नेक्स्ट विल कम टू द फिजिकल मेथड। इसमें क्या है, माइक्रो इंजेक्शन मेथड है। तो ये नॉर्मली एनिमल्स में होता है और इसमें क्या जाता है, इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए, विद द हेल्प ऑफ, ये आपका होस्ट सेल है, ठीक है, ये आपका होस्ट सेल है, ओके। और ये माइक्रो इंजेक्शन मेथड, होस्ट सेल को यहाँ पे होल्ड किया जा रहा है विद हेल्प ऑफ पाइपेट, ओके। एंड देन माइक्रो इंजेक्शन मतलब एक नीडल को यूज़ किया जाता है टू प्लेस द फॉरेन डीएनए। ये क्या करेगा, ये इंजेक्ट करेगा, ओके, ये होस्ट सेल में इंजेक्ट करेगा, ओके। एंड जो न्यूक्लियस है होस्ट सेल का, उस होस्ट सेल के न्यूक्लियस में वो फॉरेन डीएनए को इंजेक्ट कर देगा। ये एनिमल्स में ये मेथड यूज़ होता है, इसको माइक्रो इंजेक्शन मेथड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्लांट्स में। तो प्लांट्स में भी एक मेथड है जिसे कहा जाता है जीन गन मेथड। इसका एक और नाम है बायोलिस्टिक मेथड भी इसे कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो डीएनए है उसको उसको पहले गोल्ड के साथ उसको कोट किया जाता है, ओके, गोल्ड और टंगस्टन के साथ उसको कोट किया जाता है। तो आफ्टर इट इज कोटेड विद गोल्ड और टंगस्टन, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इससे वेरी हाई वेलोसिटी में, ओके, बहुत फास्ट उसको बॉम्बार्ड किया जाता है। बॉम्बार्ड मतलब ये देखिए, ये आपका बैरल है, जीन गन बैरल है, ठीक है। यहाँ पे आपका डिस्क है, इस डिस्क में आपका क्या है, आपका जो डीएनए कोटेड डीएनए वो यहाँ पे होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए, दो है, एक ऊपर में एक है डिस्क, एक नीचे में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको बॉम्बार्ड, इसको फुल फोर्स में इसको पुश किया जाता है एंड इट इज़ बॉम्बार्डेड इन आवर टारगेट प्लांट सेल्स, ठीक है। तो जैसे वो आता है उसको फिर ले लिया जाता है, ठीक है। ये आपका जीन गन मेथड और इसको भी बायोलिस्टिक मेथड भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग प्लास्मिड। मैंने आपको मेरी प्रीवियस क्लास में बताया था, अगर आपने मेरा क्लोनिंग वेक्टर्स का देखा होगा क्लास, या तक अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ रिफर टू दैट क्लास फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टीआई प्लास्मिड के बारे में, ओके। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जो आपका टीडीएनए रीजन होता है ना टीआई प्लास्मिड में, उसमें क्या होता है, यू कैन इंसर्ट योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, योर डीएनए आउट देयर एंड यू कैन यूज़ दैट पार्ट, दिस पोर्शन, यू कैन यूज़ दिस पोर्शन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे यही बताया है कि क्या होता है पहले कि हम यहाँ पे कुछ इस मेथड में क्या होता है, जो कुछ वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उसके जो आर्म्स होते हैं उसको पहले डिसआर्म किया जाता है क्योंकि वो पैथोजेनिक होते हैं। मैंने कहा था मेरे प्रीवियस क्लास में, तो वो उसको पैथोजेनिक होते हैं तो उसको डिसआर्म किया जाता है, ओके। और उसमें हम क्या करते हैं, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें हम लोग उसमें इंसर्ट करते हैं एंड देन वी यूज़ दैट पार्ट, दैट वेक्टर टू ट्रांसफर आवर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। तो इस तरीके से टीआई प्लास्मिड को यूज़ कर सकते हैं। एंड अदर प्लास्मिड्स आर ऑल्सो यूज, लेकिन बैक्टीरिया में जो आपके प्लास्मिड्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, आपका स्पेसिफिक जीन्स होते हैं, ओके, दोज जीन्स विच कैन हेल्प इन द अपटेक ऑफ फॉरेन डीएनए। तो उस बैक्टीरियल सेल को हम लोग क्या करते हैं, कॉम्पिटेंट पहले बनाते हैं। वंस द बैक्टीरियल डीएनए इज कॉम्पिटेंट देन इट कैन टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मोर एफिशिएंटली। उसके लेने के बाद क्या होता है, देन द जीन हैज़ टू बी एक्सप्रेस, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो आ गया, हमारे होस्ट में आ गया है, ओके। नाउ दे आर मेड टू ग्रो, ओके, स्पेसिफिक कंडीशंस दिया जाता है एंड इट अलाउज दोज आवर फॉरेन डीएनए जो अंदर आ गया है, इट अलाउज देम टू ग्रो, इट अलाउज देम टू बी एक्सप्रेस्ड, ओके। उस जीन को एक्सप्रेस करने की कंडीशंस प्रोवाइड किया जाता है उस बैक्टीरिया के अंदर में, उसको कहा जाता है एक्सप्रेशन ऑफ जीन एंड देन दैट जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी यूज
फॉर फर्दर, ओके, फॉर फर्दर एप्लीकेशंस, ठीक है। तो उसे अदर लाइक एप्लीकेशन स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपका मैमेलियन सेल्स में भी होता है, सेम प्रोसेस है। मैमेलियन सेल्स को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, एंड वंस इट इज मेड कॉम्पिटेंट इट कैन बी यूज्ड फॉर जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग प्लास्मिड्स। वेरी इजी है ये पार्ट, ज़्यादा बहुत छोटा है, मैंने फिर भी थोड़ा डिटेल्स में बताया है। एंड आफ्टर दिस मैं आपको बताऊंगी अबाउट प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एंड ऑल्सो अबाउट बायोरिएक्टर्स एंड अबाउट पीसीआर मेथड, ओके। सो ये कुछ क्वेश्चंस है, प्लीज़ गो थ्रू द क्वेश्चंस, दे आर वेरी इजी। अगर आपको कुछ डाउट्स है प्लीज़ बताइएगा एंड कमेंट कीजिएगा, लेट मी नो। सो आई होप आपको आज का क्लास पसंद आया हो। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।